Hare Krishna. So we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 9, verse 27. दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः. Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. He then explained by divisions acts of charity, the pragmatic activities of a king, and activities for salvation. Then he described the duties of women and devotees both briefly and extensively. Purport. To give charity is one of the householder's main functions, and he should be prepared to give in charity at least 50% of his hard earned money. A brahmachari or student should perform sacrifices. A householder should give charity, and a person in the retired life or in the renounced order should practice penances and austerities. Those are the general functions of all the ashrams or orders of life on the path of self realization. In the brahmachari life, the training is sufficiently imparted so that one may understand that the world as property belongs to the Supreme Lord, the personality of Godhead. No one therefore can claim to be the proprietor of anything in the world. Therefore, in the life of a householder, which is a sort of license for sex enjoyment, one must give in charity for the service of the Lord. Everyone's energy is generated or borrowed from the reservoir of energy of the Lord. Therefore, the resultant actions of such energy must be given to the Lord in the shape of transcendental loving service for Him. As the river draws water from the sea through the clouds and again go down to the sea, similarly, our energy is borrowed from the Supreme Source, the Lord's energy, and it must return to the Lord. That is the perfection of our energy. The Lord, therefore, in the Bhagavad Gita 9.27 says that whatever we do, whatever we undergo as penance, whatever we sacrifice, whatever we eat, or whatever we give in charity must be offered to Him, the Lord. That is the way of utilizing our borrowed energy. When our energy is utilized in that way, our energy is purified from the contamination of material inebrities, and thus we become fit for our original natural life of service to the Lord. Raj Dharma is a great science. Unlike modern diplomacy for political supremacy, the kings were trained systematically to become munificent and not merely be tax collectors. They were trained to perform different sacrifices only for the prosperity of the subjects. To lead the prajas to the attainment of salvation was a great duty of the king. The father, the spiritual master, and the king are not to become irresponsible in the matter of leading their subjects to the path of ultimate liberation from birth, disease, death, and old age. When these primary duties are properly discharged, there is no need of government of the people by the people. In modern days, the people in general occupy the administration by the strength of manipulated votes, but they are never trained in the primary duties of the king, and that is also not possible for everyone. Under the circumstances, the untrained administrators play havoc to make the subjects happy in all respects. On the other hand, these untrained administrators gradually become rogues and thieves and increase the taxation to finance a top heavy administration that is useless for all purposes. Actually, the qualified Brahmanas are meant to give direction to the kings for proper administration in terms of scriptures like the Manu Samhita and Dharma Shastras of Parashara. A typical king is the ideal of the people in general, and if the king is pious, religious, chivalrous, and munificent, the citizens generally follow him. Such a king is not a lazy, sensuous person living at the cost of the subjects, but alert always to kill thieves and dacoits. The pious kings were not merciful to dacoits and thieves in names of nonsensical ahimsa, non-violence. The thieves and dacoits were punished in an exemplary way so that in future no one would dare commit such nuisance in an organized form. Such thieves and dacoits were never meant for administration as they are now. The taxation law was simple, there was no force, no encroachment. The king had a right to take one fourth of the production made by the subject. The king had a right to claim a fourth of one's allotted wealth. One would never grudge parting with it because, due to the pious king and religious harmony,
There was enough natural wealth, namely grains, fruits, flowers, silk, cotton, milk, jewels, minerals, etc. And therefore, no one was materially unhappy. The citizens were rich in agriculture and animal husbandry, and therefore, they had enough grains, fruits, and milk without any artificial needs of soaps and toilets, cinemas, and bars. The king had to see that the reserved energy of humanity was properly utilized. Human energy is meant not exactly for fulfilling animal propensity but for self-realization. The whole government was specifically designed to fulfill this particular purpose. As such, the king had to select properly the cabinet minister, but not on the strength of voting background. The ministers, the military commanders, and even the ordinary soldiers were all selected by personal qualification, and the king had to supervise them properly before they were appointed to their respective posts. The king was specially vigilant to see that the tapasvis, or persons who sacrificed everything for disseminating spiritual knowledge, were never disregarded. The king knew well that the Supreme Personality of Godhead never tolerates any insult to his unalloyed devotees. Such tapasvis were trusted leaders even of the rogues and thieves who would never disobey the orders of tapasvis. The king would give special protection to illiterates and helpless and widows of the state. Defense measures were arranged previous to any attack by the enemies. The taxing process was easy and it was not meant for squandering but was for strengthening the reserve fund. The soldiers were recruited from all parts of the world and they were trained to special duties. As far as salvation is concerned, one has to conquer the principles of lust, anger, unlawful desires, avarice, and bewilderment. To get freedom from anger, one should learn how to forgive. To be free from unlawful desires, one should not make plans. By spiritual culture, one is able to conquer sleep. By tolerance only, one can conquer desires and avarice. Disturbances from various diseases can be avoided by regulated diets. By self control, one can be free from false hopes, and money can be saved by avoiding undesirable association. By practice of yoga, one can control hunger, and worldliness can be avoided by culturing the knowledge of impermanence. Dizziness can be conquered by rising up, and false arguments can be conquered by factual ascertainment. Talkativeness can be avoided by gravity and silence, and prowess can be prowess one can avoid fear by prowess one can avoid fearfulness. Perfect knowledge can be obtained by self cultivation. One must be free from lust, avarice, anger, dreaming, etc. to actually attain the path of salvation. As far as the women class are concerned, they are accepted as a power of inspiration for men. Such women are more powerful than men. Mighty Julius Caesar was controlled by a Cleopatra. Such powerful women are controlled by shyness. Therefore, shyness is important for women. Once this control wall is loosened, women can create havoc in society by adultery. Adultery means production of unwanted children known as Varna Sankara, who disturb the world. The last item taught by Bhishma Deva was the process of pleasing the Lord. We are all servants, eternal servants of the Lord, and when we forget this essential part of our nature, we are put into material conditions of life. The simple process of pleasing the Lord, for the householders especially, is to install the deity of the Lord at home. By concentrating on the deity, one may progressively go on with the daily routine work, worshipping the deity at home, serving the devotee, hearing the Srimad Bhagavatam, residing in a holy place, and chanting the holy name of the Lord are all inexpensive items by which one can please the Lord. Thus, the subject matter was explained by the grandfather to his grandchildren. Hare Krishna. तो काफी लंबा ये परपोट है और यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने विस्तार पूर्वक बताया है कि किस प्रकार भीष्म पितामह ने अलग अलग विषय वस्तु के ऊपर उन्होंने चर्चा की। ये सभी चर्चा वो युधिष्ठिर महाराज को कर रहे थे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज परेशान होकर उनके पास आए थे। भगवान कृष्ण उनको लेकर आए थे और भगवान उनको समझाना चाह रहे थे कि किस प्रकार जो तुमने ये युद्ध किया है वह वास्तव में धर्म की स्थापना के लिए किया है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है। और धर्म की स्थापना के लिए ही इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, इतने राक्षसों का कत्ल हुआ है, हत्या हुई है, वध हुआ है। तो वास्तव में यह कोई गलत कार्य नहीं था। यहाँ पर क्योंकि धर्म की स्थापना हुई है, युधिष्ठिर को एक धार्मिक राजा होना चाहिए उसके लिए। और उसके लिए क्या क्या आवश्यक है
वो पूछ रहे हैं अपने पितामह से, अपने दादाजी से कि और दादाजी उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति को चैरिटी देनी चाहिए और राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, स्त्रियों की, भक्तों की क्या स्थिति है समाज में। उन्होंने शॉर्ट में और विस्तार पूर्वक, तो भागवतम में क्योंकि चर्चा का विषय भागवतम वास्तव में परमार्थ जो है उसकी चर्चा करता है। परमार्थ है प्रेम परमार्थो महान, मतलब प्रेम की चर्चा करता है, भगवान के प्रति प्रेम को किस प्रकार से विकसित किया जाए। इसलिए यहाँ पर जो चर्चा की गई है वो संक्षिप्त रूप में की गई इन सब चीजों की, कैसे राज्य चलाया जाए, कैसे दान दिया जाए। वास्तव में भगवान के लिए भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए आपको धन की आवश्यकता नहीं है। आप धनी हैं या निर्धन हैं, आप सुंदर हैं या आप असुंदर हैं, इतने सुंदर नहीं दिखते, आप पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, आप किसी निम्न जाति में, उसमें जन्म लिया है या उच्च कुल में जन्म लिया है, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उच्च कुल में जन्म लेने के लिए अगर कोई योग्य है तो उतना ही कोई निम्न कुल में जो जन्म लिया है वो भी उतना ही योग्य है। तो धर्म के लिए, भगवान की भक्ति के लिए इन सब की आवश्यकता नहीं है, परंतु राज्य चलाने के लिए सबकी आवश्यकता है। और क्योंकि धर्म को सपोर्ट करते, भक्ति को सपोर्ट करता है राज्य, भक्ति को सपोर्ट करने वाली सारी क्रियाकलाप होते हैं, सभी क्रियाकलाप वास्तव में, जैसे आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, और घर चला के आप अपनी भक्ति को सपोर्ट, आप इस प्रकार से पैसे से अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आपके घर में कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप आसानी से भक्ति कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं। यदि आपके घर में कुछ समस्या आ जाए, मान लीजिए किसी पति पत्नी में विवाद हो जाए और तलाक तक बात पहुंच जाए, तो वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करने में भी असफल हो जाएगा, उसको बहुत व्यवधान आएंगे। क्योंकि जब भी वो भक्ति करने बैठेगा, जब भी वो भगवान का नाम जप करने बैठेगा, तो उसको वही चीजें परेशान करेंगी। अगर किसी के पास धन नहीं है और धन के कारण बहुत परेशानियां हैं, खाना ठीक से नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो अपने पत्नी और बच्चों के पालन के लिए अगर किसी के पास पर्याप्त धन नहीं है तो भी वो परेशान रहेगा और नाम जप में उसको व्यवधान आएगा। तो इसलिए ये सब जितने भी क्रियाकलाप हैं हम जो कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलती रहे। और अगर देखा जाए तो भक्ति किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, इसलिए हमें ये हमारा धर्म भी बन जाता है। और एक धर्म, अगर अगर आप अपना एज ए पति, एज ए पत्नी, एज ए फादर, अगर आप अपने धर्मों का निर्वाह नहीं करेंगे तो आपको भक्ति में भी प्रगति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो भी आवश्यक है। और यह सब हमें ड्यूटीज क्यों मिली हैं? क्योंकि हम कर्म के बंधन में अभी भी बंधे हुए हैं। जिस दिन कर्म के बंधन से आप निकल जाएंगे, जिसने पूरा जीवन अपना, जो एक सन्यासी बन गया, पूरा जीवन भगवत भक्ति के मार्ग पर उसने अर्पित कर दिया, उस व्यक्ति के लिए कोई समस्या नहीं है। क्योंकि वह जो भगवान का की भक्ति करने लगता है, यह भी कहा गया है, एक श्लोक आता है 11वें स्कंद में, कि जो भगवान की भक्ति करने लगता है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं रहता, ना देव ऋण रहता, ना फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, सारे ऋणों से वो ऋण हो जाता है, सारे ऋण उसके उतर जाते हैं। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आपको यह भी श्योर रहना चाहिए, यह भी विश्वास रहना चाहिए कि भागवतम कहती है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे सारे ऋण, मेरे ऊपर कोई इसी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। तो ये जो है उनके लिए विशेष तौर पर लागू होता है, जो पूर्णतः अपना जीवन भगवान के भक्ति के मार्ग को दे चुके हैं, भगवान की भक्ति के प्रचार को दे चुके हैं, उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर विभिन्न कर्तव्य बताएंगे, इनसे हम निश्चित रूप से सीख ले सकते हैं क्या क्या किसके कर्तव्य हैं। जैसे जैसे बताया गया डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी क्या है? वो लोकतंत्र। वास्तव में यहाँ पर जो लोकतंत्र का जो परिदृश्य है वो बहुत ही दूषित है, क्योंकि कौन है लोग चुनने वाले? निम्न निम्न श्रेणी के लोग हैं। निम्न श्रेणी के क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि ये स्वयं भगवान के 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, स्वयं मांसाहार करते हैं, स्त्री संग, अवैध स्त्री संग करते हैं, नशा करते हैं और जुआ खेलते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप वोट चुन के लाने को कहेंगे तो वो उन्हीं लोगों को लाएंगे जो इनकी इस प्रकार की गतिविधियों को सुविधा प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए आप देखते हैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर इलेक्शन जीतना है तो वो एक शराब का पैकेट दे देती है, 500 रुपये दे देती है, लोगों को व्यभिचार के अलग अलग माध्यम प्रदान कर देते हैं और चिकन मटन बांट देते हैं, है ना। तो जिसको वोट चाहिए वो ये सब कर देता है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? यही लोकतंत्र की खामी, क्योंकि आप उन लोगों से अपेक्षा कर रहे हैं चुन कर लाने की जो स्वयं अपने चरित्र में उज्जवल नहीं है, चरित्र जिनका उज्जवल नहीं है, जो कि 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद हमेशा कहते थे लोकतंत्र व्यर्थ है, लोकतंत्र एकदम व्यर्थ है। लोकतंत्र में आप कभी अपेक्षा, यह नीचे ही लेके जाएगा समाज की परिस्थिति को, यह निम्न स्तर तक ही लेके जाएगा, कभी भी ऊपर लेने में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कोई राजा कोई आ जाए, गलती से कोई राजा आ जाए जो अच्छा हो, तभी थोड़ा संभव है। अदरवाइज यहाँ से जो लोग वोट होकर चुनकर जो आ रहे हैं वो सभी निम्न स्तर के लोग हैं। क्योंकि पहले क्षत्रियों के लिए भी धर्म होता था और क्षत्रियों को धर्म की शिक्षा होती थी। वो भी गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे, वहां पर उन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा मिलती थी, उनको यह शिक्षा मिलती थी किस प्रकार से उन्हें ईमानदारी से राज्य चलाना है और अपनी प्रजा के लिए धर्म के पालन की स्थितियां उत्पन्न करनी है। पहले ये उनको सिखाया जाता था, लेकिन आज उनको युद्ध सिखाया जाता था। आज युद्ध करने वाला कोई है क्या? युद्ध करने वाला कोई नहीं। लोग अपने जो बड़े बड़े जनरल्स जिनको कहते हैं, क्या कोई फ्रंट पे जाके युद्ध करता है? पहले जैसे राजा फ्रंट पे जाके लड़ाई करता था, तलवार चलाता था, अब तो कोई नहीं करता। तो वास्तव में वो कोई कोई वीर योद्धा नहीं है। इन्होंने इनकी अगर क्षमता नहीं है युद्ध क्षेत्र में जाकर फ्रंट में लड़ाई करने की, क्योंकि अब वो समय भी वैसा नहीं बचा है। आप कहेंगे समय भी नहीं है वैसे, सब लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बॉम्ब्स हैं, रॉकेट हैं, बटन दबा के आप किसी जगह का सर्वनाश कर सकते हैं। तो लेकिन वो जो जो एक शिवलरस, एक वीरता होती है क्षत्रिय के अंदर, वो भी नहीं दिखाई देती कई जगहों पर। तो और अगर दिखाई भी देती है तो जो जो नेता हैं वो तो अलग है। नेता तो युद्ध के क्षेत्र से नहीं आते, कोई जनरल तो नेता नहीं बनते। और लोकतंत्र में देखिए, जो लोकतंत्र में अगर एक शुद्ध एक क्षत्रिय आ जाता है चुन के, तो वो डिक्टेटर बन जाता है, अगर क्षत्रिय आ जाए। क्योंकि अगर उसे ब्राह्मणों से वो सलाह नहीं लेता तो वो मोनार्की नहीं है, वो राजतंत्र नहीं, राजा नहीं। प्रॉपर जो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार राजतंत्र होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि मेन जो उसका सपोर्ट था वो उसके मंत्री होते थे जो ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण सपोर्ट करते थे, उसको सलाह देते थे, और वो सलाह देते कि किस प्रकार धार्मिक रूप से राज्य करना है। इस प्रकार से राजतंत्र चलता है। अभी जो मिनिस्टर चुन के आते हैं वो भी लो क्लास है, जो राजा है वो स्वयं लो क्लास हो जाता है। तो जब सब कुछ ऐसे हो जाता है तो लोकतंत्र बर्बाद हो जाता है। तो वास्तव में शूद्रों से कहेंगे चुन के लाने के लिए तो वो शूद्र ही चुन कर लाएंगे। कोई वैश्य को राजा बना दीजिए तो वैश्य जब राजा हो जाता है तो कौन सा आ जाता है? तो कैपिटलिज्म आ जाता है। और शूद्र को राजा बना दिए कम्युनिज्म आ जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये, क्योंकि वैदिक, जब तक वैदिक वर्णाश्रम की स्थापना नहीं होगी तब तक प्रॉपर राजा कभी चुन के नहीं आ सकता, प्रॉपर समाज नहीं हो सकता। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज तो धार्मिक राजा थे, और वही भीष्म पितामह से ये सब पूछ रहे थे कि किस प्रकार से राज्य करना है। तो ऐसे अनेक नियम बताए हैं उन्होंने। जैसे चैरिटी, चैरिटी गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बताया, शास्त्र कहते हैं कि 25% धन चैरिटी में देना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि हम, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम 25% अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं ला सकते तो जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, लेकिन प्रति प्रति माह हमें दान करना चाहिए। अपने मंदिर, हमारा जो मंदिर चल रहा है इस्कॉन सोसाइटी, उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि इस्कॉन सोसाइटी में हम जो जो अपना जीवन भगवान के पालन के लिए भगवान के भक्ति के प्रचार के लिए दिए हैं, उनके लिए हम चैरिटी करते हैं।
ताकि भक्ति की प्रचार हो सब जगह। तो हमें कोशिश करनी चाहिए प्रति माह कुछ ना कुछ, जैसे हम लोगों ने हमारे जो भक्त हैं उन्होंने, मैंने स्वयं भी अपने पर मंथ हमने भी कुछ चैरिटी के लिए लगा रखा है कि इतना पर मंथ मेरा जितना है, जैसे 10% तक, 5, जितना भी आप कर सकते हैं जितना संभव है अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, तो वो चैरिटी में देना चाहिए। ये क्या है, इससे बहुत सारी सुविधा होती है। क्या सुविधा होती है? हमारी भक्ति को ही सुविधा होती है, क्योंकि हमारा धन जो है वो बहुत बड़े मोह का कारण है। जब आप धन से स्वतंत्र स्वयं इच्छा से, स्वेच्छा से जब आप धन से अपने आप को अलग करते हैं, तो वो धन आपको बंधन कारक नहीं होता है और अच्छे कार्य के लिए लगता है, भक्ति के प्रचार के लिए लगता है। इससे समाज को सही दिशा ले जाने में सहायता मिलती है। तो और देखेंगे आप, दान के बहुत बहुत से फायदे हैं। दान से आपके जीवन में बहुत सारी परिस्थिति अच्छी हो जाती हैं, ये भी है। पहले जो इवन व्यापारी होते थे वो भी जानते थे, जो मारवाड़ी और बनिया होते हैं वो जानते हैं कि जितना दान करेंगे उतना ही पैसा आएगा। आप जितना दान करेंगे उतना पैसा आ जाता है अपने आप ही। तो ये इसीलिए ये लोग आजकल भी आप देखेंगे, मारवाड़ी और बनिया अभी भी, अग्रवाल्स पूरा जो कोलकाता में मेन जो चैरिटी देने वाले हैं आप देखेंगे, अग्रवाल्स हैं, मारवाड़ीज हैं, जो व्यापारी हैं वो देते हैं अच्छी चैरिटी, बिकॉज दे नो द दिस कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी क्लियर टू देम। प्रिंसिपल बहुत उनको स्पष्ट है कि मैं दान दूंगा तो पैसा आएगा भी, तो अगर उनको पैसा चाहिए तो भी दान देते हैं वो, और भगवत भक्ति के लिए दान देते हैं, भक्ति के कार्यों के, धार्मिक कार्यों के लिए दान देते हैं। तो इस प्रकार से ये नियम, भीष्म पितामह अलग अलग नियम बता रहे हैं, हम सभी उन पर ध्यान दे सकते हैं, अपना जीवन सुचारू रूप से, धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम चला सकते हैं, ताकि गृहस्थ आश्रम क्या करे, भक्ति को सपोर्ट करे, हमारी भक्ति आगे बढ़ती रहे। बाकी भक्ति कैसे बढ़ती रहेगी? भक्ति में हमारा कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अति प्रयास होने होने लगे। अति प्रयास जब होने लगता है तब हमारी भक्ति अफेक्ट हो जाती है। तब आपको समझना चाहिए यहाँ पर मेरी सीमा है, इस सीमा के पार नहीं जाना है, क्योंकि इस सीमा के पार गए तो आपके पास समय नहीं बचेगा अपना नाम जप करने के लिए। अति प्रयास जब होने लगेगा, तो आप अगर 18-18 घंटे जॉब कर रहे हैं तो फिर आपके पास बची क्या रहा है समय, आप जप नहीं कर पाएंगे। तो पैसा कमाना है, सही है, लेकिन पैसा उतना कमाना है कि मेरा नाम जब सुचारू चलता रहे। नाम जब जैसे ही आपका अफेक्ट होने लगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा अति प्रयास हो रहा है। किसी भी प्रकार के बंधन अगर इस प्रकार से हमें हमारी भक्ति को परेशान कर, हमारी भक्ति को मुश्किल पैदा करने लगे, तो समझना चाहिए ये अति प्रयास हो रहा है या ये मैं गलत मार्ग पर चल रहा हूं। तुरंत वहां से हमें उसको शॉर्ट कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए कि अब मुझे आवश्यकता है अब नाम जप पे ध्यान देने की, और तभी हमारी भक्ति चल पाएगी। तो दोनों ही एक्सट्रीम से बचना है, पूरी तरह लेजी नहीं हो जाना है और पूरी तरह अति प्रयास के चक्र में भी नहीं पड़ जाना है। लेजी अगर हो, कैसे लेजी कैसे हो जाएंगे, आलसी कैसे हो जाएंगे कि आदमी सोचता है भक्ति का सहारा लेके कहने लगता है अरे मैं तो भक्ति का, हमें क्या जरूरत है, ये तो सब मोह माया है, पति बच्चे तो सब मोह माया है, जॉब ये तो सब मोह माया, क्या काम करना है। फिर वो जो है भक्ति को भी बुरा नाम लेकर आता है, इस्कॉन का नाम बदनाम करता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि लोग कहते हैं देखो भक्त बने बैठे हैं, काम भी नहीं करते हैं, ऐसे लोग ही तो जो है धर्म को बदनाम किए हैं। तो दोनों ही हमें क्या रहना, सम्यक रहना है। जैसे युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त, रेगुलेटेड, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, युक्त आहार, युक्त विहार, इवन एंजॉयमेंट इज ऑल्सो युक्त विहार, मतलब दैट रेगुलेटेड होना चाहिए। तब हम भगवान की सेवा में स्वयं को लगा सकते हैं, बिना किसी एक्सट्रीम पर जाए, अपने परिवार को चलाते हुए, अपनी जॉब को चलाते हुए, सब समाज का ध्यान रखते हुए हम एज अ गृहस्थ, ये सब जो है गृहस्थ के लिए है, ये ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए ये नहीं है। ब्रह्मचारी सन्यासी का तो धर्म ही वही है, उसका प्रचार ही करना है, हमें प्रचार के साथ साथ और भी कार्य करना है। ठीक है, वो हमारी हमारी कंडीशनल ड्यूटी कहते हैं ना, कंडीशनल ड्यूटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो कंडीशनल ड्यूटी शुड नॉट बिकम ओवर बर्डन सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इज अफेक्टेड,
At the same time, we should not become lazy in our conditional duties in the name of constitutional duties, because we have taken to Grihastha ashram means we cannot say, we cannot run away from our conditional duties also. We have to take care of our conditional duties. But have this in mind that Krishna always takes care of his devotees. Krishna removes all the kinds of debts we have in our lives. And ultimately, if we become pure devotees of Krishna, then all the people who are connected to you as relatives, they will all be benefited, right? We should have that faith. So let us all chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare attentively, and we'll go back home, back to Godhead in this lifetime. Hari Bol, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।